Hello everyone. Hope you will be fine and in the high state of Iman and health. From Mentor English, myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, vlogger, novelist, Professor M. Raza. Today, we are going to start next chapter of history of Saint Anthony High School, Saint Peter's High School, and Saint Lucas High School, and some important schools. They are connected with Oxford syllabus. So let's get started. How did ancient Greece influence our world? Kaise should we I'll try my best to give you the Urdu translation at the end. First give me a complete vivid picture of this subject, this chapter. How did ancient Greece influence our world? How they impress us, how they flourish us, and how they better us? In this chapter you will learn about the achievements of Greek civilization, how classical Greek ideas have influenced the modern world, the achievements of Alexander the Great. Before the classical age of Greece, in chapter 5, we learned about how the Persians were defeated by the Greeks, but how were the Greeks. Look at source 6.1. It shows that Greece is made up of mainland and islands. The Greeks mainland is divided by rock or rocky mountains ranges, and the Aegean Sea as many small islands in it. The geography of the area, main communication and trade difficult. It was easier to travel about by boat than by land. Because of this, settlement grew up near the sea or coastal areas. People could also catch fish here, and the flatters coastal lands was better for farming. For a thousand years before the Greek civilization reached its height, there had been civilization in the area. In time, coastal settlements grew up to become city states until there were 150 of them, each ruled by a king, a family, or a group of rich nobles and landowners. These city states, often called Greece, traded on the shores of the Mediterranean and Black Seas, and in more distant lands includes China and the subcontinent. As trade increased, Greece developed a wealthy empire. So the page number 70 is closed here right now. Source 6.1. As you watch this atlas view, you can see the legends, the city states of Athens, city state of Sparta, Greek city, Greek colony, kingdom of Macedonia, major battles and state boundaries. As you can see, the Macedonian state, Mount Olympus, and Aegean Sea, Asian Minor, and then Marathon, Athens, Salmis, Olympia, and Sparta. And where are the yeah. So let me give you a detailed of this page 70, starting page of chapter 6 in Urdu. How did ancient Greece influence our world? How did, कैसे ancient Greece जो तारीखी जो ग्रीस है यानी यूनानी है,
अजीम यूनानियों ने इस दुनिया को कैसे इम्प्रेस किया, कैसे उसके ऊपर अपने असरात डाले। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर यू विल लर्न अबाउट, आप सीखेंगे, जानेंगे द अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में। हाउ क्लासिकल ग्रीक्स आइडियाज़ हैव इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न वर्ल्ड, के कैसे ग्रीक जो क्लासिकल आइडियाज़ हैं, ग्रीक क्लासिकल आइडियाज़ हैं या जो है यूनानियों के जो अजीम आइडियाज़ हैं, हैव इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न वर्ल्ड, कि कैसे वो जो है ना मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसको जानेंगे, उसको करेंगे, या उसके बारे में जो है ना वो कैसे उन्होंने जो है ना इस नई दुनिया को इम्प्रेस किया, या उनके क्या असरात इस नई दुनिया पर मौजूद हैं। द अचीवमेंट्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, द अचीवमेंट्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, और इसी तरह जो अजीम सिकंदर था उसकी जो है ना वो क्या क्या उसने जीता था, क्या क्या उसने किया था, और क्या क्या उसकी जो है वो अचीवमेंट्स थी, उसकी जो है ना वो नुमायाँ कामयाबियाँ थी। बिफोर द क्लासिकल एज ऑफ ग्रीस, जो क्लासिकल एज का मतलब, वैसे क्लासिकल अब हम सुनते हैं तो अगर आप थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें कि क्लासिकल का मतलब क्या होता है, वो जो पक्के राग होते हैं उसमें मतलब फास्ट म्यूज़िक नहीं होता, उसके अंदर जो है वो रैप नहीं होता, उसके अंदर जो है ना वो पॉप नहीं होता, यानी ये जो हमारे आज के दकम पेल की जो मौसीकी होती है वो नहीं होती, एक स्मूथ या पुरानी मौसीकी, उसको हम कह देते होते हैं क्लासिकल। ठीक है, इसी तरह एज वाइज भी जब हम इसको लेकर आएंगे तो इससे मुराद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ जो पुराना एक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहेंगे, पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहेंगे, वो दुनिया का, या उसके ऊपर जो है वो, जैसे आप लिटरेचर पढ़ रहे थे मेरे पास, तो लिटरेचर के अंदर हमने क्लासिकल और न्यू क्लासिकल एज जो है ना वो जानी। यानी आप ऐसे समझ लें कि एक स्टार्टिंग एज होती है ना, तो उसके बाद जो उसकी एज होती है, और उसके बाद फिर उसके अंदर रीशेपिंग्स आती हैं, या उसके अंदर जो है ना वो रिनाइसा आता है, या उसके अंदर तब्दीली आती है, तो वो वाला जो एज, यानी पैदाइश के बाद जो है ना वाली जो एज होती है, या स्टार्टिंग के बाद वाली जो एज होती है, उसको हम क्लासिकल एज कह सकते हैं। इन चैप्टर 5, 5वें चैप्टर में वी लर्न, हमने सीखा अबाउट हाउ द पर्शियंस के कैसे जो एल फारस थे या ईरानी थे, वर डिफीटेड बाय द ग्रीक्स, के वो यूनानियों के हाथों जो है वो हार गए। बट हु वर द ग्रीक्स, लेकिन ग्रीक्स हैं कौन। लुक एट सोर्स 6.1, 6.1 तस्वीर के अंदर अगर आप देखें, इट शोज़, ये दिखाता है दैट ग्रीस है इज़ मेड अप, के ग्रीस मुश्तमिल था ऑफ अ मेन लैंड एंड आइलैंड्स, एक बड़े जो है ना वो एरिया के ऊपर और कुछ जजीरों के ऊपर, जैसे वो मैसेडोनिया वाला जो आपने एरिया देखा और उसके बाद जो है ना वो जजीरे आपने देखे, तो पर मुश्तमिल था। द ग्रीक मेन लैंड्स, जो ग्रीक मेन लैंड है, इज़ डिवाइडेड, वो तकसीम की जाती है बाई रॉकी माउंटेन्स, जो रॉकी माउंटेन्स हैं, रेंज हैं, यानी कि रॉकी माउंटेन्स यानी चट्टानों वाले जो पहाड़ थे उनके जो सिलसिले थे उसके अंदर, एंड द एजियन सी, और जो एजियन सी था, जैसे हम बहरा अरब अहमर बोलते हैं, मेडिटेरियन सी बोलते हैं, वैसे ही एजियन सी नाम है समंदर का, जो समंदर के का जो एरिया था एजियन का, हैज़ मैनी स्मॉल आइलैंड्स इन इट, उसके अंदर छोटे छोटे जजीरे थे। जो जियोग्राफी ऑफ द एरिया, उस इलाके की जो जियोग्राफी है, आर मेन कम्युनिकेशंस एंड ट्रेड डिफ़िकल्ट, उसके अंदर जो मेन कम्युनिकेशन और ट्रेड थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी। इट वाज ईजियर, लेकिन ये इजी था टू ट्रैवल अबाउट द बाई बोट्स, के कश्तियों के ज़रिए जो है ना सफ़र किया जाता, देन द लैंड जो है वो ज़मीन की जगह पर, बिकॉज ऑफ दिस, के इसके सेटलमेंट ग्रू अप नियर द सी, के समंदर के किनारे या कोस्टल एरिया के किनारे या साहिल समंदर के किनारे जो है, या जो समंदर के अंदर साहिल के अंदर जो पानी वाला इलाका होता है ज़्यादा, उसके अंदर जो है ना वो इनकी जो है वो अफजाइश थी। पीपल कुड आल्सो कैच फिश हियर, यहाँ पर लोग जो है ना वो मछलियाँ पकड़ते थे। एंड द फ्लैटर्स कोस्टल लैंड, और इसी तरह बिखरी हुई कटी फटी जो साइली पट्टी थी या जो इलाका था, वाज बेटर फॉर फार्मिंग, वो एक बेहतरीन जो है ना वो इलाका था
जो है वो फसलें उगाने के लिए फॉर 1000 ईयर्स, सालों तक, बिफोर द ग्रीक सिविलाइजेशन, जो यूनानी तहजीब है, रीच्ड इट्स हाइट, वो अपने इंतहा तक पहुंची। देयर हैड बीन सिविलाइजेशंस, उनके अंदर जो है ना वो तहजीबों का जो है ना इन द एरिया, उसके अंदर अब मज़ीद मजहबों का और तहजीबों का जो है ना वो इर्तिका था इन टाइम। उस वक्त कोस्टल सेटलमेंट, जो उनकी कोस्टल सेटलमेंट है यानी साइली जो उनकी जो है ना आमाजगाहें थी, ग्रू अप टू बिकम सिटी स्टेट्स, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शहर बनी। अनटिल देर वर 150 ऑफ देम, कि उनमें से 150 जो है वो रियासतें बन गई। ईच रूल्ड बाई अ किंग, जिसको एक राजा जो है या एक बादशाह जो है वो चलाया करता था। फैमिली और अ ग्रोन, या एक बादशाही ख़ानदान, और अ ग्रुप ऑफ रिच नॉबल्स, या जो है ना वो बड़े जो सेनेटर्स होते थे या अच्छे जो है ना वो अमीर जो तबका होता था वो, एंड लैंड ऑनर्स, और जो उस जगह के जो है ना वो लैंड ऑनर्स या वहाँ पे नवाब थे या वहाँ के जो है ना वो वडेरे थे। दीज सिटी स्टेट्स ऑफन कॉल्ड, ये जो है रियासतें या ये जो शहरी रियासतें थीं अक्सर आपस में भी लड़ती और झगड़ती थीं। ग्रीस ट्रेडेड, यूनानियों ने जो है ना वो तिजारत की ऑन द शोर्स, जो है ना साहिलों के ऊपर, ऑफ द मेडिटेरेनियन, बहर अहमर के, एंड ब्लैक सी, और बहर असवद के, एंड इन मोर डिस्टेंस लैंड, और इसी तरह जो है वो दीगर जो ज़मीन थी उनके अंदर, इंक्लूडिंग चाइना एंड द सब कॉन्टिनेंट, और इसी तरह बर सग़ीर। एज़ ट्रेड इंक्रीज ग्रीस डिवेल्प्ड, और इसी तरह जो है ना उसने यूनान को और ज़्यादा जो है ना वो बढ़ाया, और यूनान की जो वो जो एरिया था उसके अंदर इजाफा किया। डिवेल्प्ड अ वेल्दी एम्पायर, और उसे एक बहुत बड़ी अजीम जो है वो सल्तनत बना दिया। यहाँ पर हमारा सफ़ा नंबर जो है ना वो 70 मुकम्मल होता है। सो अब आपने ये बच्चों को जो है ना, अगर आप इंग्लिश जो है वो फ्रेंचाइज स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बिकोनियन इंस्टीट्यूट में, एजुकेटर में, शुएफात में, ग्रीन में, सेंट एंथनी में, सेंट पीटर्स में, सेंट ल्यूकस में अगर आप पढ़ा रहे हैं, या इसी तरह के किसी बड़े जो है ना वो, तो उनका एक पूरा स्टैंडर्डाइज जो है ना वो सिस्टम होता है, उसके मुताबिक आपने इसको लेकर चलना है। तर्जमा मैंने आपको इसलिए दिया है कि एज अ टीचर आपको श्योरिटी हो जाए, या घर में अपने बच्चे को जो है ना होमवर्क करवाते हुए आपको श्योरिटी हो जाए, यकीन हो जाए कि इस पूरे के अंदर जो है ना वो बयान क्या किया गया। तो इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ 71 पेज के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। लेट मी गो नाउ, एंड बिफोर गोइंग आई रिक्वेस्ट टू यू दैट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.